ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ। ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 5-5, 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ 20 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਟੱਕ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ 10 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਟੱਕ ਹੈ। 5-5, 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸਾਡੇ ਜੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਠੇ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਠੇ ਇਹੀ ਗੱਲ। ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਨੰਬਰ ਕੱਟਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਰਾਮਪਾਲ ਜਾਟ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਵਿਜੇ ਜਵੰਦੀਆ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਸੁਝਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਪਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣेंगे। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 3 ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਇਹ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਖੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ? ਤੁਸੀਂ 100 ਬੰਦਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਛੇਤੀ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਛੇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ MSP ਗਈ, MSP ਗਈ, MSP ਗਈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਆਹ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਥੋਤਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਰੱਖਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਛੇਤੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ, 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। 9:30 ਵਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਚੌਂਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਸੱਜਣ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ राजेवाल जी आपकी बात ठीक है, कानून हमने बना दिया, हमारी भी रख लो, अपनी भी रख लो। मैं कहा जी की करना है? कहता है इसमें इतनी अमेंडमेंट कर दो, इतनी अमेंडमेंट कर दो, ये बिल्कुल इनइफेक्टिव हो जाए, इसका कोई असर ही ना रहे, एक तरफ पड़ा रहेगा। लेकिन आज इसको वापस लेने के लिए ना कहो। मैं एकदम उन्होंने कहा भी मंत्री जी जे इन्ने पाप कीते हैं तो इको बारी गंगा नहा लो, सारे नूं वापस ले लो। उन्होंने कोई जवाब नहीं आया। सब तो सीनियर मंत्री मीटिंग च उठ के चला गया, कोई जवाब नहीं सरकार को। हर कानून ते एक क्लॉज ते 3 बारी बहस कर ली। 3 बारी बहस करने तो बाद जदों नहीं बोले, तुसीं पढ़िया होना प्रेस च, असीं सारे अक गए। बहस कर करके 4-4, 5-5 घंटे दी मीटिंगां विच असीं सारिਆਂ ने यस और नो लिख के तख्तियां उन्हां दे मूहरे करतियां, सानूं दसो वापस लेंदे हो कि नहीं? कोई जवाब नहीं। असीं 1 घंटा
चुप करके मौन धार के प्रोटेस्ट वजों यस और नो दियां तख्तियां लेके बैठे रहे। 11 मीटिंगां भरावो हुई हैं, कोई इन्हां कोल जवाब। ये मनते ने भी साडे कोलों बन गए कानून, गलत साडा किसी तरह खैड़ा चढ़ो, रिपील शब्द ना वरतो, या तो सानू एक मीटिंग कहते रिपील का बदल कोई शब्द दस दिओ। असीं क्या दस दिंदे आ, वो भी दस दिंदे, पर सानू ये दसो तुसीं कानून बनाए क्यों। क्या अगली तरीक ते मैं 10 केस लेके आऊं जिन्हां च लिखिया हो साडे हक च फैसला होया, क्यों गुमराह कर दिओ। मैं एक मीटिंग च 7 पार्लीमेंट के सवालों के जवाब लेके चला गया। मैं मंत्री जी नूं कहा भी मंत्री जी इन्ना नंबर सवाल फलाने MP का इस तरीक नूं तुसीं जवाब दिता है भी खेती राज्यां दा विषय आ मेरे कोल है, इन्ना नंबर सवाल फलाने MP का इस तरीक नूं तुसीं जवाब दिता है खेती मार्केटिंग राज्यां दा विषय। मैं सत्ते पढ़ते, मैनूं दस्सिओ फिर हुणे तुहाडा तुसीं इहदे च हत्थ क्यों पाया। कोई जवाब नहीं आया। हाँ मैंने कहा होगा, हाँ मैंने कहा होगा। 5 मिनट बैठे, अच्छा आप बैठ के कुछ सोचो, मैं जरा हो आऊं, उठ के अपने कमरे चला गया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री सी, दुध दे मोर्चे का तुहाडा फैसला उहदे कोलों घुरकी दे के करवाया सी। बड़े प्रधानमंत्रियों ने बाह पिया। मैनू अज दा प्रधानमंत्री सब तो ज्यादा ड्रामेबाज, सब तो बड़ा झूठा, सब तो बड़ा बेईमान नजर आता। 14 तारीख नूं 14 तारीख का वो दिन आ रहा है जदों साडे जवान ते किसान इस देश का निखड़वा अंग ने, जिन्हां ने इस देश नूं पालिया, जिन्हां ने इस देश नूं संभालिया। 14 तारीख नूं पुलवामा घटना का दिन है। असीं उस दिन सारे पिंडां विच, सारे शहरां विच कैंडल मार्च करांगे, मोमबत्तियां नाल, मिसालां नाल मिसाल मार्च करांगे। 16 तारीख नूं सर छोटू राम का जन्म दिहाड़ा है, उस दिन असीं सारे देश विच किसान अते मजदूर का दिहाड़े वजों मनावांगे। 18 तारीख नूं सारे देश विच 12 तो 4 बजे तक असीं रेलां रोकण का काम करांगे। फिर गल आ गई जी कानून तुहानूं समझ नहीं पैंदी। हुण मोदी जी थां थां कहंदे ने, उन्हां दे मंत्री कहंदे ने जी क्लॉज बाय क्लॉज बहस कर लो। साडी 4 बंदियां दी ड्यूटी लगी, इत्थे संधू साहब मेरे नाल बैठे ने भी तुसीं केस पर पेश करना है। सब तो पहला मैं बोलदा सी, भरावो 3 बार सारे कानूनां दे एक सैक्शन ते पूरी बहस की, और बहस करते सी जदों हरेक सैक्शन च असीं नुक्स कढदे सी, मंत्री लिख लेंदे सी हाँ जी ये नुक्स है, इसको अमेंडमेंट करके ठीक कर देंगे। दूजा सैक्शन चक्या, हाँ ये नुक्स है, अमेंडमेंट करके ठीक कर देंगे। सारे नुक्स लिखी गए। मैं कहा जिहदे च सारे नुक्से नुक्स ने, जिहड़ा अज मोदी कहंदा काला की है, जे सारे कानून च काला ही काला है फिर इहनूं रखण दी की लोड़ है, क्यों बनाया ये कानून, इहनूं वापस ले लो। एक मीटिंग हुई, एक केंद्र का बहुत ही प्रभावशाली मंत्री मैनू कहता है राज्यपाल जी आपकी बात ठीक है, कानून हमने बना दिया, हमारी भी रख लो अपनी भी रख लो। मैं कहा जी की करना है। कहता है इसमें इतनी अमेंडमेंट कर दो, इतनी अमेंडमेंट कर दो ये बिल्कुल इनइफेक्टिव हो जाए, इसका कोई असर ही ना रहे, एक तरफ पड़ा रहेगा। लेकिन आज इसको वापस लेने के लिए ना कहो। मैं क्या क्यों ना कहा, हमने बहुत से सुधार किए हैं, हमने बहुत सारे लेबर के कानून बनाए हैं। अगर आपके ये कानून आज वापस ले लिए, कल को लेबर वाले आके बैठ जाएंगे। मैं एकदम उन्होंने कहा भी मंत्री जी जे इन्ने पाप कीते हैं तो इक्को बारी गंगा नहा लो, सारे नूं वापस ले लो। उन्होंने कोई जवाब नहीं आया। सब तो सीनियर मंत्री मीटिंग च उठ के चला गया। ये कहते ने ये काला की है सानू दस दिओ। एक एक दाना काला दाल दा, एक एक दाना काला है, और जिहड़ी नीयत है वो तुहाडी जमीन ते अख है। मैं पूछया एक मीटिंग च भी मैनू ये दस्सिओ जे इत्थे दे किसानां नूं वेले करना है
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ। 86% ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ 90-95 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਡਲ ਬਦਲ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗਾਂ ਵਧੂ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਬਈ 65% ਕਿਸਾਨ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, 75% ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ 10ਵੀਂ ਫੇਲ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਣਤਰਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਅੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਓਗੇ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਈ। 3 ਵਾਰੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਕ ਗਏ। ਬਹਿਸ ਕਰ ਕਰਕੇ 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਲਿਖ ਕੇ ਤਖਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਜੋਂ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਠੋਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲੂ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋ ਗਈ। 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਭਰਾਵੋ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ। ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੋ, ਰਿਪੀਲ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੀਲ ਦਾ ਬਦਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7th ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ 3 ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੋਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 13 ਨੰਬਰ ਤੇ 12 ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 18 ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 33 ਨੰਬਰ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਲਿਸਟ, ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਿਓ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਸਤੇ, ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਫੂਡ ਸਟਫ, ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਸਟਫ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਸਟਫ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਆਟਾ ਫੂਡ ਸਟਫ ਹੈ, ਕਣਕ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਝੋਨਾ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਚੌਲ ਫੂਡ ਸਟਫ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਮੈਂ 10 ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆऊं ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 7 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੰਨਾ ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਫਲਾਣੇ MP ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਫਲਾਣੇ MP ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ 7 ਪੜ੍ਹਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? कोई जवाब नहीं आया। हाँ मैंने कहा होगा, हाँ मैंने कहा होगा। 5 मिनट बैठा, अच्छा आप बैठ के कुछ सोचो, मैं जरा हुआ हूँ, उठ के अपने कमरे चला गया।
एडे बेईमान अज तक भरावो, मैं इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री सी, दुध दे मोर्चे का तुहाडा फैसला उहदे कोलों कुरकी दे के करवाया सी। बड़े प्रधानमंत्रियों ने बाह पिया। मैनू अज दा प्रधानमंत्री सब तो ज्यादा ड्रामेबाज, सब तो बड़ा झूठा, सब तो बड़ा बेईमान नजर आता। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਰਵੇ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 58 ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। बड़िया सीधियां सीधियां गल्लां होंदियां ने। और मैनू अफसोस है, अब पार्लीमेंट में साडा प्रधानमंत्री बोलिया है 3 दिन पहला, सारी दुनिया ने सुनिया। भरावो, प्रधानमंत्री देश का चेहरा हुंदा है, दुनिया च उहदे एक एक शब्द ते विचार हुंदा है, जो उहदे मूहों निकलदा है उहनूं लोक ते दुनिया घोखदी है। साडे प्रधानमंत्री ने सानू गालां कड्डियां, डिप्लोमैटिक गालां। साडे प्रधानमंत्री ने जिहड़ा कहंदा सी, पहला कहंदे सी, मैं हैरान हाँ, तुहाडे लई खुशी की गल दसदा, असीं 2-3 मीटिंगां जदों भजाए ना, जिहड़े पंजाब दे अफसर गए सी, उन्हां नूं कहंदे यार असीं तां समझदे सी किसानां दे लीडर एवें हुंदे आ, इह तां सानूं घुमाई फिरदे आ। इह तुहाडे लई वधाई दी गल है। तुहाडे नुमाइंदे उन्होंने अपना लोहा मनाया। कोई एक गल का जवाब तो सानू देन जिहदे नाल असीं धरवास करिए। सरकार ने किते इत्थे ठीक कीता, सारा प्लान गलत, मुढ़ तो अखीर तक सारा कानून गलत। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बनाया, आम शहरियों को प्रभावित करता है। 1955 का कानून है, जिन्नियां व्यापारी ते पाबंदियां सी सारियां ही खत्म करतियां। एग्रीकल्चर मार्केटिंग वास्ते कानून बनाया है, कहते कोई टैक्स नहीं, कोई लाइसेंस नहीं, कोई कोर्ट च नहीं जा सकता, जे तुहाडे पैसे दब जे तुसीं कोर्ट च भी नहीं जा सकते, खुली छुट्टी। असीं उहनूं पुछिया, मध्य प्रदेश में हुणे एक स्कैंडल होया, एक कंपनी पता नहीं किन्ने करोड़ का माल किसानों तो खरीद के तुर गई, वो हुण लभदा ही नहीं। असीं कहा तेरी स्टेट च हो गया, इत्थे की हो। एक गल मेरी याद रखियो, जे आ मंडी ना रही होएगा की। बिहार ने 2006 विच APMC एक्ट खत्म कर दिता सी, मंडी का कानून खत्म कर दिता सी। ऐतकी साडे वर्करां ने, सारियां जथेबंदियां दे वर्करां ने, उन्हां दिनां विच असीं रेलवे लाइनां ते बैठे सी जदों झोना खरीद हो रहा सी। इन्हां ने थां थां ट्रक फड़े, बिहार तो आए। इन्हां ने थां थां तो ट्रक फड़े, यूपी तो आए। की भाव खरीदिया सी? बिहार च 900 रुपये झोना खरीदिया, इत्थे 1888 किसानों के नाम से उन्होंने लिया के बेच लिया। यूपी च 1200 रुपये झोना खरीदिया, इत्थे लिया के 1888 नूं बेच लिया। हुण कहंदे नहीं 2 लाख टन पंजाब च खरीद होगी। पंजाब के रकबे तो देख लो कितना झोना हो सकता है, 180-85 लाख टन हो सकता है। जिहड़ा बाकी झोना आया वो बिहार और यूपी तो आके इत्थे विकिया। यह भी अगली गल मैं जिहड़ी तुहानूं कहनी चाहुंदा, जे तुहाडी मंडी ना रही, मैनूं इस गल की चिंता है, तुहाडे कोल मंडी वास्ते नहीं, मार्केटेबल सरप्लस कहंदे ने शब्द। तुहाडे कोल 135 लाख टन कणक मार्केटेबल सरप्लस पई है। तुसीं पहलां अपने घर खाण जोगी साल दी रख दिओ, बाकी मंडी च वेचदे नूं मार्केटेबल सरप्लस कहंदे आ। बाकी सूबिਆਂ ਵਿੱਚ जिथे है ही कुछ नहीं, वो सारी बेच देंगे, फिर मुल लैके खाते। तुसीं मुल नहीं लेंदे, तुसीं अपनी कणक पहला घर जोगी रख के बेच दो। मार्केटेबल सरप्लस 135 लाख टन कणक है, 185 लाख टन झोना तुहाडे कोल बेचण नूं मंडियां च है। जे ये मंडी टुट गई तो फिर तुहाडे झोने नूं किसी ने एडा सरप्लस झोना, इहनूं किसी ने 700 नूं नहीं पुछना। हुण नवीं मंडी बन गई, कहंदा 2 मंडियां बनातियां। 2 मंडियां, एक प्राइवेट मंडी अंबानी अडानी की, कहा थोड़ी APMC, उन्होंने कहता टैक्स फ्री है।
सीधी जी मिसाल दिना मैं तुहानू, उन्होंने 164 रुपये क्विंटल कणक के उत्ते टैक्स की छूट देती। दुनिया च जिहड़े वड्डे कॉरपोरेट हाउसिस ने वो जदों मार्केट च आउंदे ने, जिहड़ा उन्हां दे मुकाबले ते हुंदा उहनूं पहलां मारना हुंदा। उन्हां ने वो बजट रखते ने 500 करोड़ 1000 करोड़ है, उन्हां वास्ते 5-10 रुपये हुंदा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ अपने जिहड़ा मुकाबला करने वाला है ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ है। पर इत्थे तो सरकार नहीं पैसे देते 164 रुपये, वो तुहानूं 64 रुपये देगा अपने जिहड़े टैक्सां की छूट होगी। तुसीं 64 रुपये के लालच विच ਉਹਦੇ ਕੋਲ बेचोगे अपनी कणक। आ जिहड़ा अंदर आड़ती बैठा है ये 1 साल 2 साल 3 साल ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੀ कैपेसिटी है, इन्नी देर रुकू। ये पैसे वाले लोग ने, ये तो कोई होर धंधा कर लैणगे। ते जदों तू ਇਹ तुर गया, ਉਹਨੂੰ पता है भी मेरी हुण मनोपली है, फिर नक बुल मार के 700 रुपये झोना आ जाओ। मैं इसे लिए तुहानू बेनती करदा, आ मंडी रहनी जरूरी है। तो भरावो स्थिति इस पासे नूं जा रही है। जे तुसी सारा केंद्र दा वतीरा देखो, कदे अज उन्हें कहता जी ये तो पवित्र अंदोलन है, जिहड़ा तुहानू गालां कढदा सी, ये गलियां दे कीड़े ने शब्द वरत्या सी। उन्हें तुहानू गलियां दे कीड़े कहा, उन्हें तुहानू अंदोलन करन दी आदत है कहंदे इन्हां नूं। ये कह के बड़ा लच्छेदार भाषण दे के जदों सारी दुनिया चों विरोध होया, फिर अज बदल के कहंदा है पवित्र अंदोलन है। इसलिए बहुत कुछ मैं लंबी गल कर सकदा, मैनू तुहाडे इत्ते धुप च बैठियां दा मैनू फिक्र है। तुसीं इन्नी देर मैनू सुनन लई, सारियां दे विचार सुनन लई इत्ते बैठे, मैं तुहाडा सारियां दा धन्नवाद करदा। पर एक गल कह के एक मैं बेनती करांगा, तुसीं बहुत लंबा ये अंदोलन कीता है, इहदी इस अंदोलन ते सारी दुनिया दी निगाह है, कोई जवाब नहीं हुंदा। तुहाडी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार नूं कहा शांतमई अंदोलन करना किसानां दा कानूनी विधानक हक है, ते जे शांतमई बैठे ने तुसीं इन्हां ते पुलिस फोर्स नहीं वरत सकदे। इह तों इलावा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा हिंदुस्तान के किसान शांतमई अंदोलन कर रहे हैं, उन्हों का अधिकार है। सरकार ने उन्होंने दे उत्ते पानी दियां बुछाड़ां क्यों मारियां, टीयर गैस क्यों छड्डी, भारत सरकार जवाब देवे। दुनिया के पद्धर ते यूनाइटेड नेशनस तुहाडे इन्हां कानूनां ते चर्चा हुई, अज तक एक नवा वरतारा कदी नहीं देखा। अमरीका च कोई भी राष्ट्रपति नवा बनता है या साडे इत्ते बनता है, एक दूजे नूं बधाई दिंदे ने। अमरीका च नवा राष्ट्रपति आया, अज तक मोदी जी नूं टैलीफोन क्यों नहीं किया, उन्हें फतेह फतूही भी क्यों नहीं हुई, क्योंकि उत्थे भी समझते हैं भी इन्हें गलत किया। उदा अमरीका लिए ये पॉलिसियां उहदे हित च ने, पर जिहड़ा किसानां नाल मनुखी अधिकारां दा उल्लंघन हो रहा है उहदी विरोधता वो भी करते हैं। तुहाडे कानूनां दे उत्ते आस्ट्रेलिया च बहस हो चुकी, तुहाडे इन्हां कानूनां ते न्यूजीलैंड की पार्लीमेंट च बहस हो चुकी, तुहाडे इन्हां कानूनां दे उत्ते इंग्लैंड की बहस में स्पैशल सैशन बुलाया जा रहा है। तो मोदी जी नूं कल्ले नूं ये कानून प्यारे ने, सारी दुनिया कहने लग पई कानूनां नाल सारे देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा, पर मोदी जी नूं ये कानूनां नाल इसलिए प्यार है। मैनूं कल कोई कहंदा सी भई दो गुजराती बाणियां नूं देश लुटाई जा रहे हैं, लैण वाले भी अंबानी अडानी दो गुजराती, अमित शाह ते मोदी दो गुजराती, रेलवे उन्हां कोल, देश के वधिया ONGC के जिहड़े रिफाइनरियां ने उत्थे तां तेल साफ नहीं हुंदा, पर अडानियां दी रिफाइनरी च तेल साफ हुंदा है। तेल के सैक्टर च ओह, रेलवे च ओह, कम्यूनीकेशन च ओह, डिफेंस च ओह, किहड़ा सैक्टर छड्डिया? आ जिहड़ा बजट पेश होया चौकस हो जाओ। मेरे को 4 दिन पहला कोई केंद्र का एक अफसर आया, आके मेरे गोडी हथ लाया, मैनू कहना मैं थोड़े दर्शन करन आया, तुसी एडा वड्डा अंदोलन जी ने सारी दुनिया च गूंज पा दी, वो खड़ा किया है। पर नाल तुहानू ये भी दसन आया 3 महीने तो बाद समा नहीं है, देश च हफड़ा दफड़ी फैल जानी है।
पहली बारी बजट में प्रोविजन रखा गया भी 12 लाख करोड़ का सरकार कर्जा लेना चाहती है जनता तो। जनता विच कर्जे के बॉन्ड फ्लोट किए जाएंगे, अज तक इतिहास कदे नहीं होया। ये भी नवी गल हुई है। कोई 10 वड्डियां कंपनियां जिहड़ियां मुनाफे च ने इस देश दियां, LIC वर्गियां, उन्होंने बेचण का प्रस्ताव बजट च आया। सारे बजट विच समाज के किसी वर्ग नूं कोई राहत नहीं, ना मुलाजम नूं, ना किसान नूं, ना मजदूर नूं, ना किसी होर सैक्टर नूं। जे रियायत दिती है तो कॉरपोरेट हाउसिस नूं कॉरपोरेट टैक्स च रियायत दिती है। इहो जी स्थिति जे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट विच छूटां दित्तियां, कहंदे जी इहदा कोई स्टॉक चैक नहीं करू, जे किते लोड़ पै जे तां देखांगे पिछले 5 साल दी एवरेज महंगाई जे वो 100% के वध हो जू, फिर असी उहदा स्टॉक चैक करांगे। पर यह भी ख्याल रखांगे भी किते उहदी जिहड़ी प्रोसैसिंग कैपेसिटी है इंडस्ट्री की, वो तो नहीं प्रभावित होंदी, वो तो वध तो नहीं है। ये भी ध्यान रखांगे भी जिन्हें स्टॉक करके रखा वह कोई सौदा किया होवे, वो तो नहीं प्रभावित होंदा। इसका मतलब सारा कानून कॉरपोरेट हाउसिस नूं खुश करने लई बनाया गया। इसलिए शुरू जदों ये कानून बने, मैं ओपनली कहा सी ये कानून साडी सरकार ने नहीं बनाए, ये तो कानून कॉरपोरेट हाउसिस ने बनाए, किसी कॉरपोरेट हाउस के CEO ने बनाए, उहदे ते साडी सरकार ने तो मोहर लाई है। तो भरावो, देश खूब बहुत धरातल वाल नीवें पद्धर नूं जा रहा। समाज के हर वर्ग नूं बाहर निकलना पेगा जे देश बचाउणा। तां भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे ते इत्थे दी आबादी नूं वंडना चाहुंदी है। मैनूं खुशी है इस अंदोलन ने भाजपा का यह एजेंडा, हिंदुत्व का, जात पात का एजेंडा, ये गुट्ठे लाता। मैनूं इस गल की खुशी है। यह अंदोलन दुनिया का सब तो लंबा समा चलण वाला अंदोलन, यह अंदोलन जिहदे विच दुनिया के सब तो वध लोग शामिल होए होण, यह अंदोलन जिहड़ा दुनिया विच सब तो वध शांतमई रहा होवे, यह रिकॉर्ड करने वाला अंदोलन है। यह अंदोलन जन अंदोलन बन गया। समाज का हर वर्ग, मैं जदों उत्ते देखदा ट्राली विच बैठे 2 वो बंदे जिन्हां दा पिंड च सिर वड्डमा वैर है, उस छड्ड के पार्टीबाजी 2 जफ्फी पा के एक ट्राली च बैठे ने। बहुत कुछ सोच दिता। मैनूं खुशी हुंदी है जदों मैं उत्ते स्टेज तो एड्रैस करके उतरदा अपने बच्चों नूं, नौजवानों नूं। मैं इक्को गल कहना, मेरी गल तुसीं भी ध्यान नाल सुन लिओ। जदों तक ये अंदोलन शांतमई तुहाडी यकीनी है कोई रोक नहीं सकता। जिदन इहदे विच हिंसा आ गई, मोदी जित जाएगा, मोदी जित जाएगा। ये ध्यान करना। मैं अपने बच्चों नूं हर बारी ये कहना, नौजवानों नूं भी नौजवानों तुहाडे ते बहुत वड्डी जिम्मेवारी है। तुहानूं इत्थे दे पॉलिटिशियनां ने अज तक बहुत बदनाम किया है, कहते जे नशई ने। मैनूं खुशी है जदों दा अंदोलन शुरू होया किसी अखबार च कदी खबर नहीं आई भी एक मुंडा फलानी जगह नशे नाल मर गया। कोई खबर नहीं कदे आउंदी। कलंक ला दिता साडे मुंडियां ने। और मैं जदों उतरदा मैं देखदा वो डिसिपलिन विच रह के उत्थे झाड़ू फड़ के सफाई करते हैं। मैं देखदा वो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। मैं देखदा वो लंगरां विच सेवा करते हैं। इक्को गल है, जोश है, उहदे नाल होश बहुत जरूरी है। जोश ते होश कायम रख के जदों तुसी लड़ोगे, शांतमई रह के लड़ोगे, दुनिया की कोई ताकत तुहानूं हराउण वाली जम्मी नहीं है। मैं गारंटी देना। असी सिद्ध कर चुके हैं ये तिन्ने कानून काले ने। असी सिद्ध कर चुके हैं सरकार बेईमान है। इसलिए तुहानूं ये बेनती है, एक झटका सी सरकार ने दिता अंदोलन नूं, उस झटके के बाद तुसी फिर खड़े हो गए। अज फिर अपने जोबन ते है अंदोलन। सरकार जे लंबा टेस्ट लेना चाहती है साडा, असी पिछे नहीं हटांगे। ये अंदोलन जितेगा, ये अंदोलन जितेगा, ये अंदोलन जितेगा। कोई ताकत नहीं दुनिया च जम्मी इनू हराउण वाली। इसलिए मैं तुहानूं अगले प्रोग्राम की कुछ जानकारी दे दियां। 14 तारीख का वो दिन आ रहा है जदों साडे जवान ते किसान
इस देश का निखड़वां अंग ने, जिन्हां ने इस देश नूं पालिया, जिन्हां ने इस देश नूं संभालिया। 14 तारीख नूं पुलवामा घटना का दिन है। असी उस दिन सारे पिंडां विच, सारे शहरां विच कैंडल मार्च करांगे, मोमबत्तियां नाल, मिसालां नाल मिसाल मार्च करांगे। 16 तारीख नूं सर छोटू राम का जन्म दिहाड़ा है। उस दिन असी सारे देश विच किसान अते मजदूर का दिहाड़े वजों मनावांगे। 18 तारीख नूं सारे देश विच 12 तो 4 बजे तक असी रेलां रोकण का काम करांगे। मेरी तुहानूं सारिआं नूं इह बेनती है, इत्थों चलिओ। मेरे साथियों ने तुहानूं बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ होर कहा जा सकता है, पर एक गल समझ लिओ, ये अंदोलन तुहाडे बच्चों का, तुहाडे भविख दा है। इस अंदोलन नूं जिन्नी देर मर्जी चले, आपां ने अपने पसीने नाल, खून नाल सिंजना है। मैं एक मीटिंग च कहा सी मंत्रियों नूं, उदों 70 किसान शहीद होए सी। मैं कहा 70 किसान शहीद हो चुके, तुसीं किन्निआं दा खून पीना चाहुंदे हो? उन्हां नूं कोई तुहाडे नाल हमदर्दी नहीं। यही वजह है, उन्हां दे एक एमपी ने, तुसीं पढ़ लिया होना, 3-4 दिन एक चिट्ठी लिखी, उन्हें कहा तुहानूं ताकत का नशा तुहाडे सिर नूं चढ़ गया। भाजपा के एक मंत्री एमपी ने लिखिया, तुहानूं ताकत का नशा चढ़ गया। इसलिए भरावो, तुसीं जिहड़े एक दिन के नोटिस से इत्थे एडी वड्डी गिनती च आए हो, जदों इस तरह का इकट्ठ होंदा है, असीं तुहानूं देखदे हां, साडा हौसला ही नहीं वधदा। साडा एक एक साडे शरीर का एक कण तुहाडा करजाई हो जाता है। कित्थे तुहाडा करजा मोड़ांगे जिन्ना तुसीं प्यार ते सत्कार सानूं दिंदे हो। इसलिए तुहाडा प्यार सत्कार सानूं बन के रखिया होया इन्हां ने। 2.5 महीने हो गए ना मैं उस अंदोलन, ना मैं जावांगा जद तक ये फतेह नहीं हुंदा, पर तुहाडा साथ इस तरह मिलता रहना चाहिए है। मैं उम्मीद करदा मेरियां इन्हां बेनतियां नूं प्रवान करोगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।